नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक्स फटाफट में, जहां पर हम आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं और साथ ही एक ब्रॉडर आउटलुक इकोनॉमी का, पूरे कमोडिटी मार्केट का भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। कंवर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज से, जो एग्री मार्केट पर आपके सवाल देंगे, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, वो नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय देंगे। आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन है जीजेईपीसी के किरीट बंसाली, और साथ ही हमारे साथ फिलिप न्यूमन है, एमडी हैं मेटल फोकस से। मेटल फोकस के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि लीडिंग डेटा प्रोवाइडर कंपनी है, मेटल के ऊपर प्रोवाइड करती है। इनके डेटा के, इनके गोल्ड और सिल्वर के डेटा को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी लेती है, और उसके एमडी फिलिप न्यूमन आज खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर न्यूमन। फाइनली our wait is over. Good to see you again, Mr. Newman. After much delay, you finally came to our show, sir. Sir, since the election of Mr. Trump, investors' fascination with gold and silver has decreased a bit. Is this an overreaction, or will Trump's election would really have any impact on gold and silver prices? And one more thing, how big a concern is US debt? Will it put a further pressure on the dollar too? Well, first of all, thank you for having me back on your show. It's a pleasure to be here again. I think, in a sense, it could be a slight overreaction, but we have to take into account the speed with which gold in particular had raced away, hitting the series of highs that we all have seen. I think what was obviously fascinating after the Trump win, we saw that a very quick repricing of expectations about US interest rates. We saw the markets become far more hawkish compared to what the Fed was saying they would have, the pace that they would adopt for reducing their rates. And we have to bear in mind it's been quite some time since we have seen the market last behave in such a hawkish manner vis-a-vis the Fed. And so with that change in the dynamic, we saw what happened to the dollar. So I think it was no surprise that we saw precious metals and gold and silver in particular being sold off. And I think the scale of the liquidations, as I've said already, partly reflected the speed with which gold had really raced away. I think what is encouraging, though, is that we've seen prices stabilize or perhaps reach their lows of around 2,600. I was in the US last week and speaking to some investors, they didn't anticipate there could be further liquidations for gold and silver. So that's something we are keeping an eye on. But I still feel as though, even though we've had those marked liquidations, that there still is further upside to come for both metals. Will we see further profit booking in gold and silver, or will the prices not come down from here? What's your report, sir? Well, I think it was interesting. If we go back just over a week, we saw when that initial weakness occurred if you focus on gold for the moment, that initial weakness, gold fell very quickly, about $100, but then quickly bounced. But what we saw last week was that further liquidation. So I think we have to see. I think there is, on the one hand, there are investors on the sidelines that missed out on the initial run-up. And so I think they could be coming into the market, but there may be other investors that are concerned with further liquidations, and they may want to sell before prices fall further. So I think there are really mixed dynamics in the market. So I think we really need to see, how things, really pan out over the next day or so to see whether this is the lows that which is a possibility. To come back to your earlier question about the US debt and how important that is, before the election, markets were expecting that whether it was a Harris or a Trump win, that US debt would rise. But the expectation was that a Trump victory
would see US debt rise to a greater extent. So I think that still has the potential to be price supportive and to attract investors into the market. And of course, even though we now think that the Fed will adopt a more hawkish stance, the expectation is it will still reduce rates, be it this year and into 2025 as well, just not as fast as we previously expected. So those reduced rates should still be supportive for precious metals prices as well. न्यूमन की फेड अधिकारी भी हॉकिश साउंड कर रहे हैं, यूएस डेट भी आगे बढ़ने की आशंका है और $100 के गिरावट के बाद भले ही यहाँ पर बाउंस बैक दिखा है, लेकिन आगे भी कुछ लिक्विडेशन हो सकती है. मिस्टर न्यूमैन, लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू सेड दैट मेनी पीपल आर सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. हैव दे बॉट गोल्ड इन द फॉल इन नवंबर और आर दे वेटिंग फॉर फर्दर फॉल? I don't think we've seen much buying as prices decline because of the price decline was pretty rapid, pretty steep. And what you tend to find is that investors would be waiting on the sidelines to see where that selling momentum eases. And therefore, when the market has reached its support, reached its bottom. So I don't think there's been much buying. Conversely, we did see some selling into those liquidations. Into that price weakness as investors wanted to book profits before gold fell any further. I think what would be interesting now, going back to, as you said, my comments about those who missed out last time, will be the extent of which they start to come back into the market. Do they believe that gold has reached its low point and therefore now is a good time to buy? That is a possibility, and that is something we'll be monitoring closely over the coming weeks. को लग रहा है कि आगे भी थोड़ी गिरावट आएगी और जो अचानक से गिरावट आई उसमें लोग खरीद नहीं पाए और अभी भी काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो साइडलाइन में बैठे हैं. मिस्टर न्यूमैन, इफ़ you have to buy gold for your personal portfolio, at what price would you like to buy it? That's a very good question. Well, as you know, Metals Focus can't give investment advice. So as you put it rightly, what would I do in my own portfolio? I think if I had the money, I would be a buyer at these levels. But of course, that is not advice for anyone else to take. But I think we have reached that point where I think is a good point to buy. And even if we do see further liquidations, which is a possibility, then as I mentioned earlier, we're still quite optimistic for the coming months. So I think there are some, again, for my own personal portfolio, I would suggest some interesting opportunities that I would personally consider. इस भाव पर भी ये खरीदेंगे और आगे और गिरावट आने पर और भी ऐड करेंगे. हालांकि प्राइस टारगेट नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें बताया कि करंट लेवल पर भी वो खरीदेंगे, यानी धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में खरीदेंगे. मिस्टर न्यूमैन, हाउ मच फर्दर डिक्लाइन डू यू सी इन सिल्वर फ्रॉम करंट लेवल्स? Well, that's a good question. So the ratio between gold and silver is around in the mid-80s at the moment, where it's been for a little while now. I think it depends on what happens in gold. If we do see further selling, down to into the 2500s for gold, then of course I think that would take silver be below 30. Conversely, if we have reached the lows and the liquidation has abated and that's now behind us, then I think you could see both start to strengthen in the coming months and into 2025 as well. What are the figures regarding purchases by central banks? Also, please share some major demand figures which can affect the prices of gold and silver. So I think in terms of central banks, as we know, I think they've been quite active this year. We're not seeing the levels of buying that we saw in 22 and 23, but those were either record levels or close to record levels. And so taking a step back, 2024 as a totality, I think will be, overall a very good year for central bank activity. And that's why, as we mentioned before in our reports and talking to you, that I think has the potential, we've seen it in the past, to help provide some solidity to the floor as well. Thank you, Mr. Newman. Thanks again. It's really great to have you in our show, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.
तो ये थे फिलिप न्यूमन थे जो एमडी हैं मेटल फोकस के, लीडिंग डेटा प्रोवाइडर कंपनी है ग्लोबली जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल तक को भी डेटा देती है गोल्ड और सिल्वर के। तो ताज़ा आंकड़े, उनको लग रहा है कि आगे भी कुछ लिक्विडेशन यानी कुछ गिरावट दिख सकती है, और अगर खरीदना है तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ जीजे ईपीसी के वाइस चेयरमैन किरीट बंसाली भी होंगे, और साथ ही हमारे साथ कैमर चौधरी और प्रथमेश माल्या भी बने हुए हैं। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है किरीट बंसाली जी हैं, वाइस चेयरमैन है जीजे ईपीसी के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले हम बात करेंगे, अमृतसर एयरपोर्ट से ज्वेलरी एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है। एक अधिकृत एयरपोर्ट के तौर पर डीजीएफटी ने इसकी इजाज़त दे दी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, किन रीजन्स के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले कस्टम क्लियरेंस वगैरह के लिए, लॉजिस्टिक के लिए उनको दिल्ली तक ट्रैवल करना पड़ता था। लोकली कितना बड़ा फ़ायदा आप देख रहे हैं इससे? बहुत बड़ा फायदा देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इसके पहले अमृतसर के पहले 12 अलग अलग सिटी में ये फैसिलिटी उपलब्ध थी। अमृतसर के और पंजाब के साथ जुड़े हुए लोगों को एक्सपोर्ट के लिए दिल्ली आना पड़ता था। लॉजिस्टिकली भी ये बहुत तकलीफ का काम था, समय का भी खर्च हो रहा था, और इट इज एक्सपेंसिव अफेयर्स एज पर ट्रैवलिंग इज कंसल्ट। ये अमृतसर खुलने के बाद यहाँ के एक्सपोर्टर को ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अमृतसर और पंजाब से करीब सिर्फ अमृतसर सिटी से 946 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अभी 21,590 एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे छोटे यूनिट्स उपलब्ध है सिर्फ अमृतसर में। हालांकि ये सारे यूनिट्स एक्सपोर्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मगर अमृतसर एयरपोर्ट खोलने के कारण ये छोटे छोटे व्यापारी जो मीनाकारी के लिए अमृतसर बहुत ही प्रचलित है, उनको हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो यूए में सेपा किया है, उसके लिए दुबई में खास करके ये मीनाकारी का बहुत डिमांड बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इससे अमृतसर और आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जानकारी दी कि 946 करोड़ का एक्सपोर्ट यहां से अमृतसर के एयरपोर्ट से हो रहा है, तो एक बड़ा नंबर है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप किसी के सप्लायर भी हो सकते हैं, कनेक्टेड जितनी छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट होती हैं उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ की जो जड़ाऊ है, जो अमृतसर की है, वो काफ़ी जानी जाती है, खासकर मीनाकारी और जड़ाऊ ज्वेलरी जिसके लिए अमृतसर जाना जाता है। सर अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के आउटलुक को लेकर, क्या लग रहा है एक्सपोर्ट का ट्रेंड कैसा दिख रहा है भारत से? ज्वेलरी एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा सर। पिछले तिहाई की बात करें तो काफी कम था, मगर एक अच्छा साइन है। लास्ट मंथ में 10% इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। सोने के भाव में कुछ गिरावट आने के कारण वो भी एक्सपोर्ट में एक फायदे का साइंस है। और कई देशों के साथ हमारे कॉमर्स मिनिस्टर सेपा का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मीनाकारी का डिमांड दुबई और यूएई में बहुत ज़्यादा है। हमने वहाँ पर ग्रोथ देखा है। आने वाले समय में बहुत सारे कंट्री के साथ सेपा हो रहा है, और गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर एक्सपोर्ट में मैं बढ़ोतरी की उम्मीद रख रहा हूँ। सर एक कारोबारी के तौर पर क्या लग रहा है आपको? आपने बात की कि गोल्ड में जो नरमी आई है, अभी ग्लोबल एक्सपर्ट से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनको लग रहा है कि आगे भी लिक्विडेशन होगा, थोड़ी और नरमी आ सकती है। हालांकि अचानक से गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी भी दिखी है। क्या लग रहा है आपका आउटलुक क्या है गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर? आगे प्राइस किधर आप जाते देख रहे हैं? गोल्ड सिल्वर में बहुत जल्दी कुछ खास भाव में बढ़ोतरी नहीं देख रहा हूँ। स्टेबल होगी मार्केट, और एक्सपोर्ट के लिए अच्छी साइन है। का मार्केट कैसा दिख रहा है आपको सर? सॉरी, डायमंड का मार्केट यहाँ से कैसा दिख रहा है? क्योंकि डायमंड तो मैंने बताया आपको, पिछले महीने हमने 10% ग्रोथ देखा है एक्सपोर्ट में। यूएस में डिमांड बढ़ रही है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चाइना, जो कि सबसे स्लो सेक्टर रहा है। कुछ प्रमोशन एक्टिविटी जीजेपीसी लगातार कर रही है। वहाँ के लोकल जो चाहे तो फूक और बड़ी ज्वेलरी कंपनी भी हमारा सहयोग कर रही है। मुझे उम्मीद है आने वाले 2-4 महीने में चाइना भी खुलना चाहिए। शुक्रिया
किरीट भाई, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि मार्केट की, एक्सपोर्ट मार्केट की स्थिति क्या है, गोल्ड सिल्वर डायमंड मार्केट का आउटलुक बताया। साथ ही अमृतसर के एयरपोर्ट को अगर मंजूरी डीजीएफटी से मिली है एक्सपोर्ट के लिए, तो इससे कितना फ़ायदा वहाँ के रीजनल ज्वेलर्स को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे दो मेहमान और बने हुए हैं, फटाफट से एक एक कमोडिटी की चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर पे बताइए प्रथमेश जी, क्या व्यू है, क्या सलाह दे रहे हैं हमारे दर्शकों को आज आप? करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज बन रही है बाइंग के लिए। दिसंबर वायदा 74,470 के करीब बाई करना चाहिए, 74,230 का स्टॉप रखना चाहिए और टारगेट 75,000 के लिए रखे। सिमिलरली सिल्वर में दिसंबर वायदा में 89,150 के करीब बाई करना चाहिए, 88,350 का स्टॉप रखना चाहिए और टारगेट 90,400 की रखनी चाहिए। ओके, अब क्रूड को लेकर क्या लग रहा है प्रथमेश जी, क्रूड की चाल किस तरफ जाते देख रहे हैं आप आगे? क्रूड में पॉसिबल है कि यहाँ थोड़ा स्टेबलाइजेशन जो देखने को मिले, वापस 5,900 जो है अपसाइड पॉसिबल है, इसको बाय करना चाहिए 5,700 पर। ये दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूँ। 5,610 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 5,880 के लिए रहेंगे। ओके, मेटल में बताइए, मेटल में आपको क्या पसंद है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप प्रथमेश जी? कॉपर 796 पे बाय कीजिए, 792 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 804 की रखिए। ओके, अब मेटल्स के बाद नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस में आगे कुछ रिकवरी आपको दिख रही है क्या प्रथमेश जी? पॉसिबल है 260 तक अपसाइड, तो यहाँ पे नेचुरल गैस में डिप्स में बाय करे 242 के करीब, 234 का स्टॉप लगाए, टारगेट 260 के लिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे धनिया की, क्योंकि धनिया में आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखी, करीब 5% की मजबूती, 7750 के ऊपर धनिया का दिसंबर का वायदा पहुंच चुका है। खबर ये है कि इस बार की जो बुआई हो रही है वो काफ़ी उसमें डिले हो गई है। जो बुआई हुए भी थे, गर्मी की वजह से वो फसलें खराब हो रही हैं। क्या धनिया को लेकर क्या खबर है आपके पास, ट्रेंड कैसा दिख रहा है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए आपका, उमर जी। नमस्कार ऋषभ मोहन जी। नमस्कार सर। दुनिया में हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड देखी है दिसंबर वायदे में, और ये काफी टाइम बाद देखने मिली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट काफी दिनों तक तकरीबन 7100-7200 की रेंज में पड़ा हुआ था और वहां से एक अच्छी अपसाइड देखने मिली है। जैसा कि आपने कहा कि स्टोइंग भी जो शुरू भी हुई है वो भी काफी स्लो हुई है, तो मेरा मानना है अभी यहाँ पे हम शायद और यहाँ से एक 200 रुपए का अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तकरीबन 7900 टू 7950 के प्राइसेस हमें ये हफ्ते में देखते के लिए मिल सकते हैं, लेकिन साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन भी रहेगा कि इसमें ज्यादा अपसाइड 8000 के ऊपर फिलहाल जब तक सोइंग के आंकड़े या सोइंग के अगर कोई नेगेटिव न्यूज है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाए, यहाँ से एक बार एक 200 रुपए की मूवमेंट के बाद थोड़ा कॉशन भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो हाल फिलहाल में मेरा व्यू वही रहेगा कि तकरीबन 7900 के टारगेट के लिए बाय किया जाए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 7630 से लेकर 7750 तक। आज ही धनिया ने एक अपने क्रूशियल 7800 का जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो इसलिए आगे अपसाइड मेंटेन होती दिख रही है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में भी आज सुस्ती दिख रही थी पूरे दिन, आखिरी घंटे में थोड़ी खरीदारी रिकवरी दिखी। क्या लग रहा है जीरे में आगे और तेजी हो, ये आपको दिख रही है या दायरे में ही रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो जीरे में नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है जीरे में आगे क्या होगा? जीरा मॉरलेस रेंज बाउंड ही दिख रहा है, 25,800 के ऊपर नहीं लग रहा है और 24,200 24,500 से ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं दिख रहा है। इसमें सोइंग के फिगर जब तक नहीं आते कुछ ज्यादा इसमें किसी भी एक तरफ की मूवमेंट एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। रेंज बाउंड ही मेंटेन रहेगा और उसी हिसाब से ट्रेड भी किया जाए। हल्दी बताइए, हल्दी अच्छी तेजी दिख रही है आखिरी घंटे में, करीब 4% की मजबूती के साथ हल्दी का दिसंबर वायदा 14,078 के स्तर पे बंद हुआ है। आगे कैसी दिख रही है हल्दी अब यहाँ से? हल्दी में मुझे आगे भी फिजिकल का सपोर्ट मिलता हुआ है और मुझे इसलिए इसमें फर्दर बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। हम करंट सीजन के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं और तकरीबन मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर से हमें नए सीजन की अराइवल्स भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए फिजिकल में एक अच्छा रिकवरी और एक बाइंग सेंटीमेंट नजर आ रहा है। मुझे यहाँ से और 200 से 300 रुपए की अपसाइड दिख रही है। 14,300 से 14,400 के टारगेट के लिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जाए, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 13,800 के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड की, जहां पर बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। गिरावट के बाद अब ये सुस्त दिख रहा है। आज 5231 पे ग्वार सीड का दिसंबर वायदा और 10,466 पे ग्वारगम का दिसंबर वायदा।
क्या लग रहा है कब ये इसमें तेजी लौटेगी? इसमें तेजी आने में विष्णु जी मुझे अभी भी थोड़ा टाइम नजर आता दिख रहा है, क्योंकि नया सीजन का जो अराइवल्स है वो अभी भी जस्ट अबाउट क्लोज टू पीक के आसपास 10,500 मेट्रिक टन के आसपास के अराइवल्स है राजस्थान में। और जब तक पूरे नए सीजन का क्रॉप अगले 1 महीने तक अराइवल स्टेबिलाईज नहीं हो जाते और कितने अराइवल्स फर्दर आने बाकी है उसका पिक्चर जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसमें एकदम एक तरफा तेजी वाला कोई मुझे रुझान नजर नहीं आ रहा है। बट इसमें पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम इसमें ज्यादा फॉल भी नहीं देख रहे, तकरीबन काफी रेंज बाउंड चल रहा है, कभी 70-80 रुपए बढ़ता है तो कभी 70-80 रुपए सीट घट जाती है। तो इसी दायरे में ट्रेड करते चले। अगर किसी को लॉन्ग टर्म इसको बाय करके चलना है तो मुझे 5,000 के नीचे नहीं लगता है अगले 2 महीने में ग्वार सीड। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा मैं ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में। हाल में तकरीबन आप 5400 के लेवल्स के लिए दिसंबर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5100। और अगर गम की बात करें तो गम में मेरा टारगेट रहेगा तकरीबन 10,650 के आसपास और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10,300 से 10,330 की रेंज। ओके, अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। एक सवाल भी है, कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पे पूछ रहे हैं। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? कॉपर आज बेहद सीमित दायरे में है, 800 के करीब है, क्या करें? 796 पे बाई कर रहे हैं, 792 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 806 से 808 तक के लिए रखिए। नवनीत है राजगढ़ से, एल्युमिनियम में पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? 240 के नीचे भाव आ चुका है, खरीदे क्या? फिलहाल इसमें वेट कीजिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जो है वो करीब 235 234 की जोन में थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। फिलहाल इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सोना या चांदी, आज शाम के सत्र में कहां खरीदारी करनी चाहिए? प्रथमेश जी, क्या सवाल है आपका? सॉरी। सोना या चांदी शाम के सत्र के लिए क्या खरीदे? महेश है हैदराबाद से। इसमें चांदी खरीदे, पॉसिबल 89,150 के करीब, 88,350 का स्टॉप लगाए, टारगेट 90,400 के लिए रखें। ओके, 90,400 तक चांदी जा सकती है। और गोल्ड क्या करना चाहिए? अगर गोल्ड में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आज ना करे, आज के लिए क्या व्यू है प्रथमेश जी? 74,470 के करीब थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है, वहीं पे एंटर करें, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिले तो फिर नहीं करना चाहिए। 74,230 का स्टॉप लगाए, टारगेट 75,000 के लिए रखें। आखिरी सवाल प्रथमेश जी, ऑप्शंस में, क्रूड ऑप्शंस में एक ट्रेड बताइए। ऑप्शंस में वैसे डायरेक्शन 5,900 का है, तो आप एट द मनी का ऑप्शन जो है 5,700 के करीब का अगर ले सकते हैं तो वो ले ले। फिलहाल प्रीमियम मेरे सामने नहीं है, बट जो भी प्रीमियम है वो पॉसिबल डायरेक्शन 5,900 के लिए रहे। ओके, शुक्रिया प्रथमेश जी आपका और कमर सादरी जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को फटाफट अंदाज में आपने कमोडिटी फटाफट में दर्शकों के सवालों के जवाब दे दिए। तो इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।